हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस ऑफ अक्टूबर मंथ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download using the Play Store, and it is available only for the Android users as of now. Once you have downloaded and opened the app, you will see a page such as the second screen here. Then you just need to log in with your Google ID, or you can say with your Gmail ID on this application, and once you have logged in, you are ready to use the particular application. As you can see, you will be seeing here my course, all courses, crack current affairs. Just click on any of those and you will be directed to a second page. Here now, what are the features or why we recommend you to use the app? Because on the app we provide you daily current affairs both in English as well as in Hindi. Both Hindi and English current affairs are provided you daily along with the quiz sessions. This is important. We provide you daily with the quiz sessions that will help you to brush up your current affairs that you gain today through our video or any other notes provided. These English and Hindi PDFs are also provided to you daily. This is provided on our app course that you can go and purchase. Two types of courses are there, 1 year plan and a second year plan, which you can opt as per your need. Then we provide you with weekly videos. Not just weekly videos on YouTube and monthly videos, daily videos are also given. Apart from that, weekly PDFs of current affairs are provided to you. Compiled PDF of current affairs of the whole week will be provided to you both in English as well as in Hindi. Then similarly for the month also you will be provided a compiled video of the whole month both in English as well as in Hindi PDF for the current affairs that will brush up your current affairs very much. Apart from this, we provide you with the topic wise current affairs, topics such as apps and web portals, important days, books and authors. Then comes your sports, then comes your obituary, national affairs, international affairs, sports. These all topics are covered by us on our YouTube channel, which you can go and check it out also. Very important this section, because we provide you with the PDFs also with them that helps you to revise through a particular order, and it is very helpful to you, so you should definitely check it out. Then apart from it, we provide you questions regarding your particular exams also, such as bank, related to your banking. We provide you questions, we provide you PDF, we provide you material that will help you to revise those topics, those important topics. So very important. All right, so I definitely recommend you to check our app and do revise and to purchase the courses, because they will be very helpful to you. These I strongly recommend you to use our app as well as website, and the quiz provided on the app is very helpful to you on the daily basis, and our monthly study material for your exams will do wonders. So do watch the video for the revision purposes, they are very helpful. And if you use my code Vikas10, straight away you will be getting an additional 10% discount on the purchase you made using the application. So additional discount for you students just from my side. It is a happy hour sale, you can say 10% discount using Vikas10. So friends, let's start with the session now. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ नोबेल प्राइज से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। नोबेल प्राइज किस व्यक्ति की याद में दिया जाता है? एल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, याद रखना, एल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने ये किस चीज़ की डिस्कवरी की थी? इन्होंने डायनामाइट। डायनामाइट क्या है? बम होता है। तो इन्होंने बम बनाया, तो इनको रिग्रेट हुआ कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए इन्होंने नोबेल प्राइज देना स्टार्ट कर दिया सारी फील्ड्स में। और जो फील्ड में दिया जाता है ये है 6 फील्ड: फिजिक्स, लिटरेचर, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, या जिसको आप बायोलॉजी कह दो। फिर आ जाता है आपका पीस में, एंड 6 होता है इकोनॉमिक्स। एक खास चीज और, जो आपका पीस प्राइज होता है ना, ये तो दिया जाता है ओस्लो नॉर्वे में, और जो ये बाकी हैं ये दिए जाते हैं स्वीडन में। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं तो जो पहला नोबेल प्राइज दिया गया था 1901 में दिया गया था।
याद रखना। आपने यहाँ पे देखा मैथ्स के लिए नोबेल प्राइज नहीं है, तो मैथ्स के लिए जो नोबेल प्राइज के लिए सम्मान मतलब नोबेल प्राइज से कैटेगराइज किया जाता है कि उसी से सम्मान दिया जाता है, उसी से कंपैरिजन में इक्वल होता है, उसे कहते हैं एबेल प्राइज। ठीक है, चलो इतना हुआ। फिर इसके अलावा एक चीज और, राइट लाइवलीहुड प्राइज। ये प्राइज भी इक्विवेलेंट होता है आपका नोबेल प्राइज के, ये भी याद रखना, राइट लाइवलीहुड प्राइज। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में किन दो व्यक्तियों को मिला, जूलियस एंड पटापोटिन। इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला 2021 के लिए इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। किस चीज की रिसर्च के लिए? डेविड जूलियस और आडम पटापोटियन को मिला। किस चीज के लिए? फॉर द डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। जल्दी से ये मार्क करके चलो, 5-10 सेकंड का मैं आपको वेट कराऊंगा, बिल्कुल टाइम दूंगा, जल्दी से नोट करो। आडम पटापोटियन और डेविड जूलियस को नोबेल प्राइज मिला फिजियोलॉजी या मेडिसिन में फॉर द डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी जल्दी से जल्दी कीजिए। ठीक है, चलो ये तो था मेडिसिन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको सम्मानित किया गया, किसको मिला नोबेल प्राइज लिटरेचर में? ये मिला अब्दुल रजाक गुरनाह को। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से सम्मानित किया गया 2021 के लिए, अब्दुल रजाक गुरनाह। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। 3 व्यक्तियों को मिला, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट और तीसरा है गाइडो डब्ल्यू इम्बेंस। इन तीनों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक चीज और याद रखना, जो डेविड कार्ड हैं इनकी अलग डिग्री थी, इनको जो मिला फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स, और जोशुआ डी एंग्रेस्ट एंड गाइडो डब्ल्यू इम्बेंस को मिला फॉर देयर मैथमेलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ कॉजल रिलेशनशिप्स। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। डेविड कार्ड को लेबर इकोनॉमिक्स के लिए, जोशुआ डी एंग्रेस्ट और डब्ल्यू इम्बेंस को कॉजल रिलेशनशिप्स के लिए। ये इकोनॉमिक्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। नाम याद रखना, बहुत रेयर चांस होगा आपसे पूछें किस फील्ड में मिला, बट मेन इंपॉर्टेंट रह जाएगा कि किन को मिला। शुकुरो मनाबे, क्लॉस हेसलमैन, जॉर्जियो परीसी, इन तीनों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, याद रखना। फिर आप इससे पहले एक और रह गया हमारा केमिस्ट्री। नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री किन को मिला? 2 व्यक्तियों को मिला था, बेंजामिन लिस्ट, मैं आपको करा चुका हूं, आपको पता होने चाहिए, बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। ठीक है, इन दोनों को क्या मिला? नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। इसके साथ साथ अगर मैं पूछ लूं किस लिए मिला, तो इनको मिला था, इनको आपका नोबेल प्राइज मिला है ऑर्गेनो कैटलिस्ट के लिए। हाँ, एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस। ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित करा गया, इन दोनों व्यक्तियों को। नेक्स्ट हम बात करेंगे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की। किन को सम्मानित किया गया सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? ये दिया कब जाता है? फिल्म फेस्टिवल के दौरान, इंडियन फिल्म फेस्टिवल के दौरान इसको दिया जाता है, इंडियन ही इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं, मार्टिन स्क्रॉसेस एंड इस्तेवान जाबो, इन दोनों को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करा गया। ये फर्स्ट एडिशन था, दैट मीन्स 2021 में ये पहली बार दिया जाएगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान, जो कि कहां पे होगा? गोवा में होगा, मार्क करना इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्यभट्टा अवार्ड की। आर्यभट्टा अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन किनके द्वारा किया जाता है? एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है? इनकी पोस्ट है कि ये चेयरमैन है DRDO के। तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो कि चेयरमैन है DRDO के, इनको सम्मानित किया गया आर्यभट्टा अवार्ड से। किनके द्वारा? ASI के द्वारा, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा इनको सम्मानित किया गया।
सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को कन्फर किया गया प्रेस्टिजियस आर्यभट्टा अवार्ड से बाय द एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉर हिज आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जे ए कशमन अवार्ड की। जे ए कशमन अवार्ड से किन को सम्मानित किया? डॉक्टर निगम जी को सम्मानित किया गया। ये फॉर्मर एनआईओ साइंटिस्ट रह चुके हैं। डॉक्टर निगम, डॉक्टर राजीव निगम इनका पूरा नाम रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मर साइंटिस्ट थे सीएसआईआर एनआईओ के। सीएसआईआर का हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। सीएसआईआर का जो डिपार्टमेंट है एनआईओ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, इसलिए इनके लिए ये पहले साइंटिस्ट थे जो कि गोवा में है, उनके लिए ये काम करते थे। एंड फिर अब इनको जे जोसेफ ए कशमन अवार्ड से सम्मानित करा गया। ये पहले इंडिया मिले फॉर जिनको सेलेक्ट किया गया है फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करिएगा कि वो पहले इंडियन कौन है जिसको जोसेफ ए कशमन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, वो है डॉक्टर राजीव निगम। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्थी वॉन्डू, व्लादिमीर सिल्विक और फ्रेडा हडसन की, और एक फाउंडेशन लाइफ के नाम से जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड एक फाउंडेशन रहेगी। ठीक है, इन चारों को राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था राइट लाइवलीहुड अवार्ड किससे रिलेट कीजिएगा आप, ये करेगा नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट अवार्ड होता है राइट लाइवलीहुड अवार्ड। ठीक है, तो 2021 के राइट लाइवलीहुड अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? मार्थी वॉन्डू, व्लादिमीर सिल्विक, फ्रेडा हसन और लाइफ फाउंडेशन, जो लाइफ है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो किनको? फ्रेडा हडसन, मार्थी वॉन्डू, व्लादिमीर सिल्विक। ये दिया किस लिए जाता है? दिल्ली के लाइफ बेस्ड इन्होंने जीता राइट लाइवलीहुड प्राइज फॉर एम्पावरिंग कम्युनिटीज इन एरियाज रेंजिंग फ्रॉम चाइल्ड प्रोटेक्शन टू एनवायरमेंटल डिफेंस। द अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज स्वीडन्स ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज गिवन बाय द स्वीडिश राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल लीडरशिप ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड की। किनको मिला? याद रखना इंपॉर्टेंट, 3 व्यक्तियों को इससे सम्मानित किया गया था। पहले है जूली स्वीट, दूसरे है अरविंद कृष्णा, तीसरे है ब्रैड स्मिथ जो कि प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरपर्सन है माइक्रोसॉफ्ट के ब्रैड स्मिथ। अरविंद सक्सेना चेयरमैन एंड सीईओ है आईबीएम के, एंड जूली स्वीट ये सीईओ एंड चेयरपर्सन है एसेंचर की। इनको सम्मानित किया गया ग्लोबल लीडरशिप ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से। ठीक है, और किन के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा ये अवार्ड ग्लोबल लीडरशिप ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सम्मानित किया जाता है। ये पुराना है, गलती से आ गई थी फोटो। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को अभी रिसेंटली सी के प्रहलाद अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं। माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्या नडेला को सम्मानित किया जाएगा सी के प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप फॉर ईयर 2021 के लिए। रीजन क्या रहेगा कि अब हम सब जानते हैं हम कार्बन न्यूट्रलिटी पे कितना बात कर रहे हैं कि कार्बन को एमिट नहीं करना, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, पॉल्यूशन फ्री रखना है, कार्बन फ्री रखना है। तो इसी वजह से इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा क्योंकि इन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं कि 2022-2025 तक ये कंपनी 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर जाएगी फॉर इट्स डाटा सेंटर्स। ठीक है, अपनी बिल्डिंग है जो इनके हेडक्वार्टर है वो सब किस पे शिफ्ट कर जाएंगे? 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे। बाय 2030 इट विल मैच द 100% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 100% ऑफ द टाइम विद जीरो कार्बन एनर्जी परचेज। मतलब जितना भी वो इन्वेस्ट कर रहे होंगे, जो भी अमाउंट होंगे ना, तो वो 100% सब कुछ आपका रिन्यूएबल पे शिफ्ट हो जाएगा 2030 तक। ऑलराइट, सारी कंपनीज अब पुश कर रही हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा कंसर्न है सभी के लिए, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट होगा तभी ह्यूमन लाइफ सस्टेन कर पाएगी, वरना फिर चाहे गूगल हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट कितने बड़े सॉफ्टवेयर बना लो कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। कब फाउंड किया गया? 1975 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वॉशिंगटन यूएसए में। और चेयरपर्सन कौन रहेंगे? जॉन डब्ल्यू थॉमसन। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैटा अवार्ड की। पैटा आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, पैटा की फुल फॉर्म वो होती है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। मतलब एनिमल्स का राइट ट्रीटमेंट हो, उनको भी सताया ना जाए, परेशान ना किया जाए, उनको मारा पीटा ना जाए, इसलिए पैटा बनी। तो पैटा एक होता है बेसिकली आप समझ लो लोगों की हेल्प करने के लिए
एनिमल्स की हेल्प करने के लिए कोई अगर किसी भी एनिमल को परेशान करता हुआ अगर आपको दिखता है तो आप पेटा को कंप्लेन कर सकते हो उस पर्सन के रिगार्डिंग। तो अभी रिसेंटली फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर मेघालय के जेम्स पांगसंग जी को रिसेंटली अवार्ड किया गया, कौन सा, प्रोग्रेसिव बिजनेस कंसेप्ट अवार्ड ऑफ पेटा। पेटा का प्रोग्रेसिव बिजनेस कंसेप्ट अवार्ड, क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी वेगन लेदर की बात की जो ये पाइनएप्पल से बनाएंगे। अब वेगन लेदर क्या होता है? लेदर तो हमें पता है कि हमें चर्बी से मिलता है एनिमल्स की, लेकिन वेगन उसके आगे टर्म लग गया तो वेगन होता है कि आप, वेगन अगर टर्म लग जाता है तो इसका मतलब उसमें कोई भी एनिमल से रिलेटेड कुछ भी चीज यूज नहीं हुई है। अब आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि मैं वेगन हूं डाइट में। वेगन डाइट क्या होती है? उसमें कोई भी एनिमल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा, सिर्फ प्लांट रिलेटेड प्रोडक्ट्स कंज्यूम किए जाएंगे। अब एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, फिर मिल्क से रिलेटेड आ गया चीज, पनीर, ये कुछ भी कंज्यूम नहीं करेगा व्यक्ति अगर वो वेगन डाइट पे। दूध भी नहीं पिएगा, मीट, चिकन कुछ भी नहीं खाएगा, ये सारी चीजें बैन होती हैं वेगन्स के लिए, तो वो वेगन उसी को कहलाते हैं। तो वेगन लेदर क्या हो गया? मतलब प्लांट बेस से हम एक लेदर बनाएंगे, उसको वेगन लेदर कह दिया, उसमें पाइनएप्पल्स यूज करेंगे, ठीक है। इसी वजह से उनको जेम्स पेंगसंग जी को, जो कि फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर है मेघालय को, उनको प्रोग्रेसिव बिजनेस कंसेप्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया पेटा का। और पेटा की फुल फॉर्म पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंस विलियम्स अर्थ शॉट प्राइज। अब अर्थ शॉट प्राइज क्या है? अर्थ शॉट प्राइज होता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई रिसर्च करना, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी बनाना, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ भी काम करना, रिन्यूएबल सेक्टर में काम करना, कोई भी चीज करें लेकिन एनवायरनमेंट को उसका बेनिफिट मिले, तो उससे रिलेटेड ऐसे व्यक्ति या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो एग्रीकल्चर वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट तकाचर, ये एक प्रोजेक्ट है इंडिया का, ठीक है। एग्रीकल्चर वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट रहेगा जो कि विद्युत मोहन के कमांड के अंडर है। तो इसी वजह से विद्युत मोहन को अर्थशॉट प्राइज से सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि देखो एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इससे क्या है कि ये वापस से रिन्यू करके काफ़ी चीज़ें बना लेते हैं, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर बना लेते हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, ठीक है। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये क्या है? तकाचर इनोवेशन, अ चीप स्मॉल स्केल पोर्टेबल टेक्नोलॉजी जो कि अटैच की जाती है ट्रैक्टर से एंड उनको कन्वर्ट किया जाता है जो रेजिड्यू होता है क्रॉप का इनटू बायो प्रोडक्ट्स लाइक फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स। तो इंडियन सोशल एंटरप्राइज तकाचर जो कि अंडर द लीडरशिप है विद्युत मोहन के, इनको नेम किया गया फॉर द विनर ऑफ 2021 अर्थ शॉट प्राइज जो कि क्रिएट किया गया था यूनाइटेड किंगडम के प्रिंस विलियम के द्वारा टू रिवॉर्ड पीपल फाइटिंग टू सेव द प्लेनेट अर्थ। तकाचर वन द अर्थ शॉट प्राइज ऑल्सो नोन एज द इको ऑस्कर। तो इको ऑस्कर का दूसरा नाम अर्थ शॉट प्राइज, अर्थ शॉट का दूसरा नाम इको ऑस्कर, ठीक है। चलो अगर हम अर्थ शॉट प्राइज की बात करें, द नेम रेफर्स टू द यूएसए 1960 के एम्बिशन मून शॉट के, मतलब हम अगले डेकेड में मून पर आदमी भेजेंगे, तो मून शॉट रखा गया था उसका नाम इनिशिएटिव का। तो सिमिलरली अर्थ शॉट रखा गया ताकि हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी रिसर्च करना या कुछ भी, उस वजह से हम उसको या उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस व्यक्ति को अर्थ शॉट प्राइज से सम्मानित करेंगे। जज कौन रहेंगे? सर डेविड एटनबर्ग, केट ब्लैंकेट एंड शकीरा इनकी जज रहेंगी। और वेन्यू क्या के रहेगा अर्थ शॉट प्राइज 2022 का? वो रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलेक्सी नेवेलिनी की। एलेक्सी नेवेलिनी को अभी रिसेंटली यूरोप यूनियन का और ईयू का सबसे बड़ा ह्यूमन राइट प्राइज से सम्मानित करा गया। आई रिपीट, एलेक्सी नेवेलिनी को, जो कि एलेक्सी नेवेलिनी जो कि रशिया की ओपोजिशन लीडर हैं, ये एक ह्यूमैनिटेरियन है, सोशलिस्ट हैं, इनको यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा प्राइज जो कि कौन सा है सबसे बड़ा प्राइज, वो आ जाता है आपका शैखरोव प्राइज। शाखरोव प्राइज जो कि यूरोपियन यूनियन का टॉप ह्यूमन राइट प्राइज है फॉर द ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के लिए, उससे सम्मानित किया गया एलेक्सी नेवेलिनी को। एलेक्सी नेवेलिनी ये रशियन ओपोजिशन लीडर पार्टी में है, लॉयर है और एंटी करप्शन एक्टिविस्ट है, एक सोशलिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इनको सम्मानित किया गया शाखरोव प्राइज से। क्वेश्चन डायरेक्ट होगा कि शाखरोव प्राइज को से किसको सम्मानित किया गया अभी रिसेंटली, जो कि है एलेक्सी नेवेलिनी। और पूछा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन का टॉप ह्यूमन राइट प्राइज कौन सा है, वो है शाखरोव प्राइज। अगर इसकी बात करें तो शाखरोव प्राइज रिकॉग्नाइजेज द इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मेड एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग freedom of thought. Sorry. The prize was awarded for the first time in 1988 to Nelson Mandela and Anatoly Marchenko. इसमें आपको 50,000 यूरो
20 सामान दिए जाएंगे। अभी यूरो का प्राइस डॉलर से ज़्यादा होता है। $1 होता है आपका कुछ 74-75 के करीब चला जाता है, लेकिन एक यूरो होता है आपका 90 प्लस हो जाता है, वो 100 भी टच कर देता है। रशिया की बात करें तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल मॉस्को और करेंसी रहेगी रशियन रूबल। नेक्स्ट हम बात करेंगे जर्मन पीस प्राइज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि वो पहली वीमेन कौन रहेंगी या फर्स्ट ब्लैक वीमेन वो कौन है जिन्होंने जर्मन पीस प्राइज को जीता, कौन रहेंगी? तित्सी डेम्ब्रंगा। ठीक है, इन्होंने अपनी बुक न्यू एनलाइटमेंट के लिए जर्मन पीस प्राइज जीता और ये पहली ब्लैक वीमेन है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि 2021 का पीस प्राइज फॉर द जर्मन बुक ट्रेड किनको मिला? तित्सी डेम्ब्रंगा। फिर पूछा जाए कि किस लिए मिला था, कौन सी नॉवल या बुक के लिए मिला था? न्यू एनलाइटमेंट के लिए मिला था। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे कुंग-फू नन्स। अभी रिसेंटली कुंग-फू नन्स ने यूनेस्को का मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज 2021 जीता। आई रिपीट, यूनेस्को का मार्शल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज 2021 किन्होंने जीता? कुंग-फू नन्स के द्वारा जीता गया। और याद रखना, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? पेरिस में। नेक्स्ट सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन कि अभी रिसेंटली इंडिया का ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 का किसने जीता, किस कंपनी के द्वारा जीता गया? टीवीएस मोटर के द्वारा। सिंपल एंड डायरेक्ट, इंडिया का ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2022 किसके द्वारा जीता गया? टीवीएस मोटर कंपनी के द्वारा इसको जीता गया, उनको अवार्ड किया गया। नेक्स्ट भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट याद रखना कि टॉप ऑर्गेनाइजेशन विद इनोवेटिव एचआर प्रैक्टिस के लिए किस बैंक को अवार्ड दिया गया या किस बैंक ने टॉप किया इन द टॉप ऑर्गेनाइजेशंस विद द इनोवेटिव ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस? किसके द्वारा अवार्ड दिया जाता है? ये 19th एडिशन है अवार्ड एट द 19th एडिशन ऑफ द एशिया पैसिफिक HRM कॉन्फ्रेंस के द्वारा के दौरान इस अवार्ड को दिया गया एंड कर्नाटका बैंक ने इस अवार्ड को जीता। आई रिपीट, कर्नाटका बैंक ने जीता टॉप ऑर्गेनाइजेशन विद इनोवेटिव HR प्रैक्टिसेस का अवार्ड। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर देखें कर्नाटका बैंक का तो मैंगलोर कर्नाटका में रहेगा। CEO है महाबलेश्वरम MS। 1924 में इस बैंक को फाउंड किया गया था और जो टैगलाइन रहेगी, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। Hello friends, through our recent general aware section analysis, we have identified that the news related to mega events is finding more weightage in the competitive exams. In order to cover related news to mega events such as Olympics, national awards, cabinet appointments, all of which contain heavy information, we have chosen a different way to convey that information using interactive infographics. Here is an example of interactive infographics. Using this, you can choose to study various information just from the single PDF. If you want to talk about the medal tally of Tokyo Olympic Games, just by clicking on the image of medals, you will be able to see the information related to medals. Now, if you want to study about any of the players mentioned here, just by clicking on the image of that particular player, you will be getting the information related to that particular player. Now, you will be provided with two types of PDFs. One is your desktop version and second is your mobile version. As the name suggests, desktop version is for both PCs, laptops, and your mobile version is basically for the mobile phones and tablets. In order to use your desktop version in mobile phone, you can use the software of WAPS application in your Google Play, and you can access the desktop version of the file in the phones also. So friends, this format of presentation will help you to remember all the valuable information in an easy manner by connecting information to the related images. Our team has worked immensely hard to bring this to you, and so please do share your valuable suggestions and feedback through comments, as it will boost us to create further such initiatives. Thank you. So friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel or if you are new to our channel, then do subscribe because it motivates us to bring a better content for you guys. Also, if you have any trouble regarding login or payment or any other issues, then you can reach to us on our mail, that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862 and we'll resolve your issue as soon as possible.
Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price, and that will help you to boost your preparation.